মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এবাৰ উভতি ধৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া তথা বক্সাৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰই আনন্দ মিশ্ৰক ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে আনন্দ মিশ্ৰই তেজস্বী যাদৱ কংগ্ৰেছ তথা লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পৰা সুপাৰি লৈ নিৰ্বাচন খেলিছে আনন্দ মিশ্ৰই মুক ঠগি বিহাৰ লৈ আহিছে এনে ধৰণে মন্তব্য কৰিছিল অভিযোগ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বক্সাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই যি মন্তব্য তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালদৰে জানে মই কোন পুনৰবাৰ কৈছো আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালদৰে জানে যে আনন্দ মিশ্ৰ কোন হয় আনন্দ মিশ্ৰ কেতিয়াও কাৰুৰে এজেন্ট নাছিল কাৰুৰে এজেন্ট কাহানিও নহয় আৰু অসমতো কাৰুৰে এজেন্ট নহল বাবে কাজিয়া হৈছিল এনে ধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰৰ ফালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হৈছে মোৰ আত্মসন্মান আছে এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছে নিটক্সৰ দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মই কোন হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানে মোক ভালদৰে চিনি পায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালদৰে জানে ভালদৰে চিনি পায় মই কোন হয় এই মন্তব্য কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই মোক অতি ঘনিষ্ঠভাৱে চিনি পায় কাখৰ পৰা পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ জানে ভালদৰে মই কোন হয় আত্মসন্মান মোৰো আছে মই মোৰ আত্মসন্মান বেলেগৰ দৰে কেতিয়াও বিক্ৰী নকৰো এনে ধৰণে কটাক্ষ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ বাবে এতিয়া প্ৰচাৰ কৰি থৈ গল অসমলৈ নিবলৈ বিচাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক নিব নোৱাৰে স্পষ্ট কথা আনন্দ মিশ্ৰই অসমলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক নিউ বুলি ক'লে এতিয়া নিব নোৱাৰে মই কাৰু এজেন্ট নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমতো মই কাৰু এজেন্ট নহলো বাবে কাজিয়া হৈছিল এগুৰা স্বীকাৰ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই অসমত মই কাৰুৰে এজেন্ট নাছিলো বাবে নহলো বাবে কাজিয়া হৈছিল মই যদি লালু প্ৰসাদ যাদৱ তেজস্বী যাদৱ কংগ্ৰেছৰ হৈতে কথা পাতিছো প্ৰমাণ কৰি দেখক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ওপেন চ্যালেঞ্জ দিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই মই বেলেগৰ দৰে নিগেটিভ মনৰ মানুহ নহয় মই কেতিয়াও নিগেটিভ কথা কৈ নুফুৰো মই সদায় পজিটিভ কথা কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনে ধৰণে উভতি ধৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰই পুনৰবাৰ কৈছো যে সৌহিদিনা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া তথা বক্সাৰৰ নিৰ্দলীয় শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিছিল কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল যিহেতু আনন্দ মিশ্ৰ বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমান অধিক শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু হে আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি পাৰ্টি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিত আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ৰণত নামিবলৈ বাধ্য হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল যে প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ঠগি মিছা কথা কৈ বিহাৰলৈ গুচি আহিছিল তদুপৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ আৰু আনন্দ মিশ্ৰই বাৰে বাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৈছিল যে মই বিজেপি যোগদান কৰিম আৰু বিজেপি যোগদান কৰি মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিম এনে ধৰণৰ কথা কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই কিন্তু বিহাৰলৈ আহি ৰং সলনি কৰিলে হেনো আনন্দ মিশ্ৰই বিজেপি যোগদান কৰিম বুলি মিছা কথা ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াৰ সলনি বৰ্তমান সময়ত প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু তেজস্বী যাদৱৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ পৰা টকা লৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা সুপাৰি লৈ আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী
প্ৰচাৰ চলাইছে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে, বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে। আনন্দ মিশ্ৰৰ কোনো কাম নাই, আনন্দ মিশ্ৰৰ ভাষণত জয় শ্ৰীৰাম শুনিবলৈ পোৱা নাযায়। চাকৰি এৰি বিজেপিৰ হৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰি যাম বুলি মিছা কৈছিল আনন্দ মিশ্ৰই। এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইয়াৰ পিছতে উভতি ধৰিছে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰৰ অপেন চেলেঞ্জ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আনন্দ মিশ্ৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাহস আছে তেনেহলে লালু প্ৰসাদ যাদৱ, তেজস্বী যাদৱ কংগ্ৰেছৰ সৈতে যে মই ফোনত কথা পাতো সেয়া প্ৰমাণ কৰি দেখক। যদি সাহস আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালদৰে জানে মই কোন হয়, আনন্দ মিশ্ৰ কোন হয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভালদৰে চিনি পায়, ভালদৰে জানে আনন্দ মিশ্ৰক। অতি ঘনিষ্ঠভাৱে কাষৰ পৰা আনন্দ মিশ্ৰক পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাটো ভাল যে মই কাৰো এজেণ্ট নাছিলো আৰু মই কেতিয়াও কাহানো কাৰোৰে এজেণ্ট নহওঁ। মই মোৰ আত্মসন্মান বেলেগৰ দৰে বিক্ৰী নকৰো বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰিলে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া, বক্সাৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰই। এই মুহূৰ্তত আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে। কি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰি মন দি শুনক। ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा। देखिए अब इतना दूर उनको बुलाया गया है कुछ उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं वो मेरे को बहुत करीब से, जानते हैं कि मैं है ना किसी का एजेंसी मतलब नहीं ले पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। इसी का तो लड़ाई था वहाँ पे, मैं किसी का एजेंट बनने को तैयार नहीं था। तो वो तो आदमी नहीं बदल जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि उत्तरदायित्व या आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात का। तो उन्होंने खुद ये भी शायद बताया कि मैं उनके पास ही गया था बोलने के लिए। मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराइए। मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, हाँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था। तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया। तो आप ये सोचिए, सेवा तो मैं तो पहले भी बोला था कि मुझे चुनाव लड़ने का उतना बड़ा ये नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दीजिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँ। तब तक मुझे ठेलता गया। और लास्ट में कि ऐसी स्थिति में ला के रख दिए, टिकट तो दूर ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह बनाने लगा, तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। अब मैं चाहता हूँ भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। हेमंत बिश्व शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, आप सख्ते में आए क्या? आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से? नहीं, देखिए ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। अब सुबह मिले हैं, 3 दिन से सोए नहीं है हम, और उसको आप अगर सख्ते में ले ले तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से। हाँ, चुनाव प्रचार में उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता। आप देखेंगे मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पे नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ। हम अपनी ताकत पे लड़ते हैं। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गया है। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में टेलीफोनिक बात करते हैं, फोन की जांच होनी चाहिए। देखिए वो भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जांच करते हैं? मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूं कि यू कैन ब्रिंग माई CDR, करा लीजिए कि हम कितनी बार बात किए हैं। हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी उनको ना डर लग जाए, ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो रोज मेरे से बात कर रहे हैं। तो इस बात पे है ना उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कौन मेरे को पैसे देता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए। और उसके बाद आप खुद, लेकिन इतना गट्स होना चाहिए कि जब सच्चाई जो बाहर आए वो पब्लिक में आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि सच्चाई में क्या है। ये गट्स हो तभी हाथ लगा। आनंद को लगता है कि अब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको फिर हम आसाम बुलाएंगे, और वहाँ आपको ज्वाइन कराएंगे, नहीं मेरे बिना चल नहीं रहा है। ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी, इतने अच्छे ऑफिसर है, चला लेंगे। तो उनको भी थोड़ा सा मोहलत दिया जाए, सबको थोड़ा सा उत्साह दिया जाए, तो अच्छे ऑफिसर से वहाँ पर चला लेंगे। मैं अपने घर आया हूँ, मैं अपने गाँव आया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जनता है यहाँ पे, हमारे जो लोग हैं वो उनको भी उनका बेटा वापस मिला है, तो ये क्यों जाने देंगे, है ना। और प्लस कोई भेड़ बकरी तो है नहीं लगे ऐसे उठाए गोदी में टांगे लगे। मतलब ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा। देखिए अब इतना दूर उनको बुलाया गया है
उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं वो मेरे को बहुत करीब से, जानते हैं कि मैं है ना किसी का एजेंसी मतलब नहीं ले पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। इसी का तो लड़ाई था वहाँ पे, इसलिए मैं किसी का एजेंट बनने को तैयार नहीं था। तो वो तो आदमी नहीं बदल जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि उत्तरदायित्व या आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात का। तो उन्होंने खुद ये भी शायद बताया कि मैं उनके पास ही गया था बोलने के लिए। मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराई, मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, हाँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था। तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया जी। तो आप ये सोचिए, सेवा तो मैं तो पहले भी बोला था कि मुझे चुनाव लड़ने का उतना बड़ा ये नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दीजिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँ। तब तक मुझे ठेलते गए और लास्ट में कि ऐसी स्थिति में ला के रख दिए, टिकट तो दूर ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह बनाने लगा, तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। अब मैं चाहता हूँ, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, आप सख्ते में आए हैं क्या? आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से? नहीं, देखिए ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। अब सुबह मिले हैं, 3 दिन से सोए नहीं है हम, और उसको आप अगर सख्ते में ले ले तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से। हाँ, चुनाव प्रचार में उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता। आप देखेंगे मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पर नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ। हम अपनी ताकत पे लड़ते हैं और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गया है। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में फोन टेलीफोनिक बात करते हैं, फोन की जांच होनी चाहिए। देखिए वो भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जांच करते हैं? मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूं कि यू कैन ब्रिंग माई CDR, करा लीजिए कि हम कितनी बार बात किए हैं। हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी उनको ना डर लग जाए, ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो रोज मेरे से बात कर रहे हैं। तो इस बात पे है ना, उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कौन मेरे को पैसे देता है। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए और उसके बाद आप खुद। लेकिन राहुल बाबा पूछते थे कि 300 सीट क्यों सही है। आज तो सबको मालूम हो गया हमें कि में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? देते हैं क्या? भाई और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो असम में था, मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको और नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं बीजेपी करूंगा। बोला टिकट, बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं ना, जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। लेकिन जो इंतजार करने का भी उनका पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? असम में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिल रहा है? उनका भी फोन ऑन चेक करना चाहिए, तेजस्वी लालू से दिन में कितना बार बातें करता है। भाई और बहनों, हमारा एक ही काम है चुनाव में, मोदी जी को जिताना है और 400 सीट दे के जिताना है कि नहीं जिताना है? देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, राम मंदिर हो गया, लेकिन हमारे और काम बाकी है। कृष्ण जन्मभूमि बना क्या?
अभी भी मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते, कब बनेगा? ये कांग्रेस लोग पूछते थे भाई राम मंदिर कब बनेगा? अभी सब चुपचाप हो गया। अभी वो लोग राम मंदिर का नाम भी नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या वो लोग? कांग्रेस का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? ये आनंद मिश्रा का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? देते हैं क्या? भाइयों और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो आसाम में था, मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको और नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं बीजेपी करूंगा। बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं ना, जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। लेकिन जो इंतजार करने का भी उनका पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? आसाम में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिल रहा है? उनका भी फोन ऑन चेक करना चाहिए। तेजस्वी लालू से दिन में कितना बार बातें करते हैं। ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा। देखिए अब इतना दूर उनको बुलाया गया है, कुछ उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं वो मेरे को बहुत करीब से, जानते हैं कि मैं है ना किसी का एजेंसी मतलब नहीं ले पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। इसी का तो लड़ाई था वहाँ पे, मैं किसी का एजेंट बनने को तैयार नहीं था। तो वो तो आदमी नहीं बदल जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि उत्तरदायित्व या आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात का। तो उन्होंने खुद ये भी शायद बताया कि मैं उनके पास ही गया था बोलने के लिए। मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराइए, मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, हाँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था। तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया जी। तो आप ये सोचिए, सेवा तो मैं तो पहले भी बोला था कि मुझे चुनाव लड़ने का उतना बड़ा ये नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दीजिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँ। तब तक मुझे ठेलते गए। लास्ट में कि ऐसी स्थिति में ला के रख दिए, टिकट तो दूर ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह बनाने लगा, तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। अब मैं चाहता हूँ, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, आप सख्ते में आए क्या? आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से? नहीं, देखिए ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। अब सुबह मिले हैं, 3 दिन से सो ही नहीं है हम, और उसको आप अगर सख्ते में ले ले तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से। चुनाव प्रचार में उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता। आप देखेंगे मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पे नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ। हम अपनी ताकत पे लड़ते हैं। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गया। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में फोन टेलीफोनिक बात करते हैं, फोन की जांच होनी चाहिए। देखिए वो भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जांच करते हैं? मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूं कि यू कैन ब्रिंग माई CDR, करा लीजिए कि हम कितनी बार बात किए हैं। हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी उनको ना डर लग जाए, ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो रोज मेरे से बात कर रहे हैं। तो इस बात पे है ना, उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कौन मेरे को पैसे देता है। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए। और उसके बाद आप खुद, लेकिन इतना गट्स होना चाहिए कि जब सच्चाई जो बाहर आए वो पब्लिक में आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि सच्चाई में क्या है। ये गट्स हो तभी हाथ लगा।
आनंद को लगता है कि अब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको फिर हम आसाम बुलाएंगे, आपको फिर आसाम बुलाएंगे और वहाँ आपको ज्वाइन कराएंगे। नहीं, मेरे बिना चल नहीं रहा है, ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी, इतने अच्छे अफसर चला लेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा मोहलत दिया जाए, सबको थोड़ा सा उत्साह दिया जाए, तो अच्छे ऑफिसर से वहाँ पर चला लेंगे। मैं अपने घर आया हूँ, मैं अपने गाँव आया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जनता है यहाँ पे, हमारे जो लोग हैं वो उनको भी उनका बेटा वापस मिला है, तो ये क्यों जाने देंगे, है ना। और प्लस कोई भेड़ बकरी तो है नहीं, कैसे उठाए गोदी में टांगे लेके, मतलब ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा। देखिए, अब इतना दूर उनको बुलाया गया है, कुछ उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं वो मेरे को, बहुत करीब से जानते हैं कि मैं, है ना, किसी का एजेंसी मतलब नहीं ले पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। इसी का तो लड़ाई था वहाँ पे, मैं किसी का एजेंट बनने को तैयार नहीं था, तो वो तो आदमी नहीं बदल जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि उत्तरदायित्व या आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात का। तो उन्होंने खुद ये भी शायद बताया कि मैं उनके पास ही गया था बोलने के लिए। मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराई, मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, हाँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था, तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया। तो आप ये सोचिए, सेवा तो मैं तो पहले भी बोला था कि मुझे चुनाव लड़ने का उतना बड़ा ये नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दीजिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँ। तब तक मुझे ठेलते गए और लास्ट में ऐसी स्थिति में ला के रख दिए, टिकट तो दूर ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह बनाने लगा, तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। अब मैं चाहता हूँ, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, आप सख्ते में आए क्या? आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से? नहीं, देखिए, ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। अब सुबह मिले हैं, 3 दिन से सोए नहीं है हम, और उसको आप अगर सख्ते में ले ले तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से। हाँ, चुनाव प्रचार में उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता। आप देखेंगे, मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पे नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ। हम अपनी ताकत पे लड़ते हैं, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गए। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में टेलीफोनिक बात करते हैं, फोन की जांच होनी चाहिए। देखिए, वो भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जांच करते हैं? मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूं कि यू कैन ब्रिंग माई CDR, करा लीजिए। कि हम कितनी बार बात किए हैं, हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी, उनको ना डर लग जाए ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो रोज मेरे से बात कर रहे हैं। तो इस बात पे, है ना, उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कौन मेरे को पैसे देता है। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए, और उसके बाद आप खुद, लेकिन इतना गट्स होना चाहिए कि जब सच्चाई जो बाहर आए वो पब्लिक में आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि सच्चाई में क्या है। ये गट्स हो तभी हाथ लगा। आनंद को लगता है कि अब उन्होंने जिस तरह से कहा कि आपको फिर हम आसाम बुलाएंगे, आपको फिर आसाम बुलाएंगे और वहाँ आपको ज्वाइन कराएंगे। नहीं, मेरे बिना चल नहीं रहा है, ये तो गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी, इतने अच्छे अफसर चला लेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा मोहलत दिया जाए, सबको थोड़ा सा उत्साह दिया जाए, तो अच्छे ऑफिसर से वहाँ पर चला लेंगे। मैं अपने घर आया हूँ, मैं अपने गाँव आया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जनता है यहाँ पे, हमारे जो लोग हैं वो, उनको भी उनका बेटा वापस मिला है, तो ये क्यों जाने देंगे, है ना। और प्लस कोई तब भी राहुल बाबा पूछते थे कि 300 सीट क्यों सही है। आज तो सबको मालूम, कांग्रेस का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? ये आनंद मिश्रा का मीटिंग में जय श्री राम सुनाई देते हैं क्या? देते हैं क्या? भाई और बहनों, ये लालू यादव ने आनंद मिश्रा को सेटिंग कर दिया है मिथिलेश जी का वोट काटने के लिए। दिया है कि नहीं दिया है? वो आसाम में था, मुझको बोला साहब मुझको VRS दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूं। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको और नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं, बीजेपी करूंगा। बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए, बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग मोदी जी को वोट देना,
किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं, जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई लड़का अच्छी लड़का होते थे, इंतजार करते थे कि मेरा भी नंबर आएगा, इंतजार करते थे। लेकिन जो इंतजार करने का भी उनका पेशेंस नहीं है, उनको पैसा कहां से मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए? आसाम में तो पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से मिल रहा है? उनका भी फोन ऑन चेक करना चाहिए, तेजस्वी लालू से दिन में कितना बार बातें करता है। भाई और बहनों, हमें हमारा एक ही काम है चुनाव में, मोदी जी को जिताना है।